नमस्कार। भारत आरोग्य संगठन आज पुनः वेबिनार की सीरीज में आगे एक नए वेबिनार के साथ आप सभी के समक्ष है। हम लोग आज का वेबिनार हेल्दी विंटर, जो आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों के यहाँ स्पेशली नॉर्थ में विंटर सीजन शुरू हो चुका है और सभी लोग इस चीज़ को जानने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं कि इस विंटर का उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और ख़ासतौर से सभी परिवारों में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, नवयुवक हैं और बुजुर्ग हैं, तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग इस विंटर का उनके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या चीज़ें सावधानी के रूप में की जाएं जिससे विंटर के या इस ठंडी के मौसम का कोई बुरा प्रभाव उनकी सेहत पर ना पड़े, या क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे वो अपनी सेहत को और अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो आज के इस हेल्दी विंटर के कार्यक्रम में मैं शुरुआत करने के लिए सबसे पहले भारत आरोग्य संगठन के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम प्लीज कम एंड स्टार्ट आवर प्रोग्राम। डॉक्टर अनुराधा मैडम, आर यू अवेलेबल इन? हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। Om Shri Mahaganapathye Namaha. My humble pranams to the lotus feet of Lord Dhanvantari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantare. Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. So I'm here to deliver the official welcome speech. So Healthy Winter is a national level webinar conducted by the team BAS, and I am very much privileged to welcome the speakers. Adharaniya Dr. Rajkala Patil ji, Associate Professor and Head, Department of Panchakarma, BHU Varanasi. My hearty welcome to you, ma'am. And the other speakers are Dr. Aravind sir, Government Ayurveda College UP, Dr. Akhilesh sir, Government Ayurveda College UP, Dr. Ketan sir, Associate Professor MUHS, Dr. Garima ma'am, Assistant Professor AIA Delhi, and Dr. S.P. Chauhan, the founder of Maheshwar Ayurveda. My humble pranams to you, all the speakers, and a hearty welcome to the national level webinar on healthy winter. And next, again coming to the background, the organizing committees of BAS team, Dr. Arun sir, who is the president of BAS, and big welcome to you, sir, an official welcome to the team again. Vice President Dr. Ajay sir, Technical Cell Dr. Swapnil sir, Financial Cell Dr. Vishali ma'am, Admin Cell Dr. Manjusha ji, and Women Cell Professor Aarti sir. Humble welcome to all of you to this platform. And last but not the least, the coordinating committee members, Dr. Vijay sir, Dr. Dheeraj sir, Dr. Kumar sir, Dr. Sandeep, Dr. Alok, Dr. Amli Krishna, Dr. Vikrant sir, Dr. Anu, Dr. Umesh, and Dr. R.K. Gupta ji. And most welcome to the important part of the team is our participants who are here to receive the knowledge from all the Ayurveda Acharyas. So we have all the gems. I hope you all utilize the knowledge and bring them onto the plate of the society, and make sure you help the people with Ayurvedic knowledge for a healthy winter season. And wishing you all a good wealth and health as praise to Lord. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much, madam. And now in the next part of this program,
I will like to call Dr. Vaishali Gupta, madam, who is the National Head of Financial in Bharat Arogya Sangathan. But maybe due to some technical problem, she is not here, I think. Her part is to introduce about the BAS. Actually, Bharat Arogya Sangathan is a pan-India organization where in all states we are working from north to south, and especially here we can see the experts from the all health stream, means allopathic persons are with us, pharmacy persons are with us, means every person from the different health stream is working in this. And especially at present, we are focusing on the 3 goals of the Ayurveda sector, that is inclusion of Ayurveda in Ayushman Bharat Yojana, second, Ayurveda as a subject in UPSC, and third, we are also demanding for the some legal rights for the in the favor of Ayurvedic doctors up to their study and their training. So BA is continuously working to spread the awareness among the all the citizens of India in this part. And in this stream, we are continuously organizing the some experts talk show or some different type of the seminar on different topics. And in that series, today we are here topic healthy winter, especially the winter climate has arrived in the North India and affecting the people. Temperature is going below 10 in most of the regions. So here we want to know what type of the precautions we should take, especially for the children, especially for the elderly. That's why we have collected a team of experts who will talk on these topics. So as per the division of age, I am just starting our topic. Healthy winter. First topic will be related to children, then related to youth, then related to geriatric person. This will be in this series. So first of all, I will like to call our expert of the pediatric department, Dr. Ketan sir. Dr. Ketan is an associate professor and he's also well known for the research projects, especially in the MUHS in Maharashtra University of Health Sciences. He has also written the books and published many articles in the different reputed journals. So, Dr. Ketan, are you available in the webinar, Dr. Ketan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, most welcome, sir. Most welcome, sir. So, sir, your topic is effect of winter on children's. Means we want to know especially what we can take precautions for the children health, as we are looking that due to the effect of winter, most of the time children are with running nose, with sometime coughing or URT problems are very much common. So what type of the food or vegetables or fruits we can suggest them so that they can remain healthy? So Dr. Ketan sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Dr. Satyaprakash sir, for giving me this opportunity. As now winter season is started in many parts of India, we are seeing increase in patients in pediatric zoo due to the cold weather, and the main reason for that, we are not protecting children's. They are refusing to use warm clothes, and it impacts on their health. Some common situations found in children is dehydration. Due to winter, children are not drinking water, and dry skin like complications they are facing. So we have to first focus on their hydration, proper drinking of water at regular intervals, using warm clothes, and giving them good food like dry foods, seasonable fruit. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, any kind of other advices for the children means, especially can they use any type of rasayan as prescribed in Ayurveda, or tonics or multivitamins, which can help in boosting their immunity, especially, or for the promotion of their health? Yes, sir. Yes, sir.
First of all, we should do deworming of all children to age group of 16. In recent times in Maharashtra, we are celebrated deworming day. So the first line of treatment, we can say deworming with the Ayurvedic drugs like Vedangasav. And after the deworming, we can use rasayan therapy with the help of Arvidasav. And also we can use the famous Chyawanprash in regular intervals. And special precaution should be given to the sleeping schedule of children, as so many parents are working late, so their in family their children are also getting late for sleeping, and their total sleep schedule is disturbed. It will impact on their health and digestion process also, which ultimately uh, changes into their immunity systems. Yes, sir. Okay, so general prescriptions means like Chyawanprash, Arvidasav, or Swarnaprasan like things which can be add for the health benefits. And Yes, sir. deworming Yes, is also a very good thing. We should conduct it and to take plenty of water, especially lukewarm water, and wearing proper clothes. This will be the, I think, beneficial thing for the children to maintain their health. Anything especially in the fruits or vegetable section? yes, sir. We should convince them to use green leafy vegetables and seasonable fruits available in particular areas, because that are made is the fruits of nature. So we should use as per seasons, and more precaution we have to take for their activities, as nowadays children are busy in their schools, tuitions, and after coming to home, they are using gadgets, electronic gadgets like mobile, laptop, TV. So we have to focus on their physical activities most importantly. Yes, sir. Okay, okay. Actually, these are the some very important advices. Most of the children are in growing phase, और very important thing I would like to share here. बच्चे इस समय जब बड़े हो रहे हैं तो कई बार जब जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं उनके साथ स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक। ये बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन बच्चों को इस एज ग्रुप में बार बार अगर इन मेडिसिन के लिए एक्सपोज होना पड़ रहा है तो फ्यूचर में, चूंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द मेडिकल साइंस। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो अभी काम कर रही हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं एक बड़ी पॉपुलेशन पे। तो अगर हमारे बच्चे इस एज ग्रुप में जल्दी जल्दी इंटरवल पे बीमार हो रहे हैं और हम उनको बार बार दवाइयाँ देके ठीक करते भी दे रहे हैं, तो ये भविष्य में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए सर ने जो एडवाइजेस की हैं, एक अच्छा स्लीपिंग पैटर्न, अच्छा क्लॉथिंग पैटर्न, और अच्छा उनके लिए काउंसलिंग करना फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ रसायन के रूप में मेडिसिन लेना, जस्ट लाइक अरविंदासो, च्यवनप्राश और स्वर्णप्राशन लाइक थिंग। So thank you very much, sir. Any other special advice which you would like to share with us? Yes, sir. Yes, sir. Nowadays, we are looking increase in patients with mental stress. So we should try to speak with our children also and our patients also. Nowadays, recently, one of first year BMS student succumbed to death by suicide. This psychosomatic disorders and mental stress are increasing day by day, and one of the main reason is less conversation in families. So this is a very burning issue. We have to focus on that. Yes, sir. Thank you. Okay, okay. Thank you, sir. This is a very recent topic. Suicidal tendencies or suicide attempts in the children are very much common. School-going students are trying to suicide. So this is very important suggestion that communicate with the children, counsel with the children, and one of the most important etiological factor, that is mobile. Try to avoid them, especially, or keep with them with mobile under your own observation. So thank you, sir. Thank you very much, sir, for your kind words.
आई होप कि बहुत से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को सुना है, फिजिकली नहीं मेंटली चैलेंजेस भी जो आज बच्चों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनके लिए जो आपके एडवाइजेज हैं बहुत ही बहुमूल्य रहेंगे और बच्चों की लाइफ में इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Now we are moving in the next part of our webinar, that is the challenges of winter season in youth. So for this topic, we have expert Dr. Akhilesh sir. He is MD from BHU, very expert person, and I think no any entrance examination available in the Ayurveda, MO, MOCH, or any other लेक्चरशिप एग्जामिनेशन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको सर ने अपने टाइम पे क्रॉस न किया और सारे एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद वो अपनी चॉइस से एज ए रीडर, एज एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज में एज ए रीडर अपॉइंटेड हैं। तो सर ही इज एक्सपर्ट इन द्रव्यगुण ब्रांच, so he is available here to discuss with the problems of winter for the youth section. So sir, are you available here, Dr. Akhilesh sir? Yes, sir. Okay, thank you sir and welcome. Thank you, sir. So sir, we have organized a series that is healthy winter. So we have discussed till now the problems of winter season for the children. So what are the problems, what are the challenges for the youth, and what they can take precaution? Especially the questions will be same, means what they can use in the form of vegetables, fruits, or exercise, or in the form of some rasayan by which they can keep themselves healthy. So sir, please. थैंक यू सर। सर पहली बात तो ये है कि यूथ जो हमारी है बात करें तो एज ग्रुप जो है 35 साल के यूथ का लिया गया। तो दिक्कत क्या है? ट्वेलिंग है। हेलो अखिलेश सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही थी आपकी आवाज़, प्लीज। सर अब क्लियर आ रही है आवाज? जी जी जी। सर मैं बता रहा था कि जैसे यूथ की बात करें तो एक एज ग्रुप है 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स। आधुनिक मतानुसार लें या अपने आचार्यों के मतानुसार लें तो एक यूथ इस एज ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं। और ये वही एज ग्रुप है जो या तो हायर एजुकेशन के लिए या तो जॉब के लिए जिनको अपना घर से बाहर निकलना है या जिले से बाहर निकलना पड़ता है, कई बार देश से भी बाहर जाना पड़ता है। तो अब सीजन चेंज भी कहीं ना कहीं उनको ज्यादा फेस करना पड़ता है इन कंपेरिजन जो लोग घर के अंदर ही रह रहे हैं, जिनको ज्यादा बाहर निकलना नहीं है। तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर से विंटर सीजन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंटर सीजन में बाहर का एनवायरनमेंट जो है शीत वायु की वजह से पैरोटाइटिस ही है, उसमें कोई ऐसा सूजन वो कैंसर वैसा तो आया लिखाइए, देख लेंगे। अभी आ रहे हैं हेलो, कि हाँ निकले? डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, आपका अनम्यूट है मेरे ख्याल से, स्पीकर उसको म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर राधे सर। जी सर, बिल्कुल। ओके ओके। कैन आई स्टार्ट? यस यस यस। सर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि शीत ऋतु में जो है कि बाहर का एनवायरनमेंट की वायु जो शीत रहती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी की ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ऊष्मा बाहर ना निकलने के कारण जो जठराग्नि को और प्रबल बना देती है। और अग्नि का अपना स्वभाव रहा है कि अगर उसको बने रहना है तो उसको ईंधन चाहिए। प्रबल जठराग्नि की वजह से विंटर सीजन में व्यक्ति को गुरु स्निग्ध आहार की अधिक आवश्यकता होती है। परंतु जो हमारा यूथ है कहीं ना कहीं अपने कार्य की वजह से चाहे अनचाहे
आहार विहार में लापरवाही कर देता है, जिसकी वजह से अगर आहार नहीं मिलता है तो अग्नि स्वभाव से धातुओं का पाचन करने लगती है। धातु पाचन के कारण अ, तो वायु जो है विशेष रूप से प्रकोपित हो जाता है। अब वायु प्रकोपित होने की वजह से विभिन्न वातजन रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं विंटर सीजन, जैसे कि शीत ज्वर हुआ, अतिसार हुआ, काश हुआ, उदर रोग हुआ। इस तरीके के रोग कॉमनली देखे जाते हैं विंटर सीजन में, और खासतौर से यूथ में हो जाते हैं। अब इनके बचाव के लिए हम यही कर सकते हैं कि विशेष रूप से अपनी डाइट में स्निग्ध है, मधुर, अम्ल, लवण रस प्रधान आहार का प्रयोग करना चाहिए। मांस, अनुमांस, औदक मांस का प्रयोग, और मदिरा है, सिधु है, मधुपान, इसका भी उपयोग आचार्यों ने बताया है। उसके अलावा बिहार की बात करें तो अभ्यंग है, उत्सादन है, शिरो अभ्यंग है, आतप सेवन, निवात स्थान में रहना, ये आचार्यों ने बताया। इसके अलावा शौचालय क्रिया के लिए, स्नान के लिए उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, और यथाशक्ति मैथुन और व्यायाम इसका उपयोग करना चाहिए। ये विशेष रूप से प्रिवेंशन में आचार्यों ने बताया है। और वर्ज्य आहार की बात करें तो विशेष रूप से वातवर्धक, लघु अन्नपान, प्रभात और प्रमित आहार, इनका सेवन निषेध बताया गया शीत ऋतु में। ओके, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डाइट प्रॉपर लें, एक्सरसाइज भी करते रहें इस सीजन के अकॉर्डिंग, खुद को कुछ हद तक ठंडी से बचा के रखें, क्योंकि यूथ के लिए ये अपने आप में एक चैलेंज है। बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे एजुकेशन में हो चाहे जॉब में हो, तो इनको अक्सर कोल्ड एक्सपोजर के चांस ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एज ग्रुप्स। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छी डाइट लेना और प्रॉपर क्लॉथिंग, इस पर ध्यान देना है, और ल्यूक वार्म वाटर का एज मच एज जितना पॉसिबल है प्रयोग करना, और सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स जो भी जिस रीजन में अवेलेबल हैं इस समय जो हो रहे हैं, नट्स वगैरह का अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जी कोई सर। और एडवाइस सर इन लोगों के लिए, क्या रसायन में या कुछ ऐसे टॉनिक, या जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें जो हम अपने फूड में शामिल कर लें तो इफेक्ट ज़्यादा ना आए सीजन का, और हमारी हेल्थ को भी कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिले? सर रसायन की बात करें तो सारंगधार जी का एक श्लोक है जो बाल्यादि 10 अवस्थाओं का ह्रास प्रत्येक 10 वर्ष में बताया है। इसमें बाल्यम वृद्धि, शरीर मेधा, त्वक दृष्टि, शुक्र विक्रमो, बुद्धि कर्मेंद्री, चेतो जीवितम, दस्तो हर्षेत। और विशेष रूप से यूथ की बात करें तो हमारा वृद्धि, छवि और मेधा जो 20 से 40 वर्ष के बीच में आ रहा है, इसकी जी। हानि होती है। तो इसको बचाए रखने के लिए हमको विशेष रूप से च्यवनप्राश का सेवन रेगुलर करना चाहिए। अमलकी रसायन है, अश्वगंधा चूर्ण है, और मेद के लिए चतुर्थ मेद बताए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमें शंखपुष्पी और ज्योतिषमती का प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिषमती चूंकि उष्णवीर होता है तो शीत ऋतु में इसका विशेष उपयोग होना चाहिए। और जैसे कि हमारा ओके। यूथ का आजकल मोबाइल का प्रयोग है, और या वर्क ही ऐसा है कि जिसमें आपको कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करना है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है प्रभावित हो रही हैं। तो विजन इशू सबको इस एज में आने शुरू हो जा रहे हैं, जहाँ पे आचार्य सारंग हमने 60 के बाद बताया है। और आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी विजन इशू आ गए हैं। तो उसके लिए हम नेत्र रसायन के रूप में सप्तामृत लौह और त्रिफला घृत का प्रयोग करा सकते हैं। जी। तो हाँ, एक्चुअली ये चीज़ आपने एक नया बहुत अच्छा टॉपिक बताया, क्योंकि एक्सेस यूज ऑफ हमारा काफ़ी टाइम स्क्रीन पर रह रहा है, इसकी वजह से जी आइज सर। में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और थोड़ा सा जो एक उसके कारण स्ट्रेस है। तो ऐसे में मेध्य में आपने दो कल्प भी बहुत अच्छे बताए, एक सप्तामृत लौह और एक त्रिफला रसायन। सप्तामृत लौह और त्रिफला रसायन दोनों ही आइज के लिए भी अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ आपने कुछ मेडिसिन भी सजेस्ट की जो एक हर्ब्स के रूप में है, और जैसे अश्वगंधा के लिए आपने बात की, ये अच्छा है, च्यवनप्राश ये अच्छा है, और आपने ज्योतिषमती और शंखपुष्पी जो एक मेंटल हेल्थ के लिए बताया जिनको यूज किया जा सकता है। तो ये हर्ब्स की फॉर्म में मिलती हैं या इनके कोई कल्प हैं, तो आप कंपेरेटिवली अपने सराउंडिंग में जो भी कोई आयुर्वेद के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलकर उनके साथ अपना पर्टिकुलरली डोज वगैरह डिसाइड करके इस तरह के कल्पों को आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो थैंक्स सर। इसके अलावा कोई आपकी तरफ से कोई अदर एडवाइस?
जी सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंटर में रात लंबी होती है, नाइट लंबी रहती है, तो फास्टिंग काफी लंबी हो जाती है हम लोगों की। तो मेरी यही एडवाइस है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी हम उठें तो एक हैवी ब्रेकफास्ट जरूर करें, उसके बाद ही घर के बाहर निकलें। इससे हम अ, ठंड लगने से भी बचेंगे और हमारी जो जठराग्नि प्रबल हो रखी है उसको हम प्रॉपर ईंधन देंगे। इसके अलावा स्वभाव से शीत ऋतु में, क्योंकि हम लोग स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन अधिक करते हैं, तो स्वभाव से कफ का संचय होता है शीत ऋतु में। तो जैसे ही शीत ऋतु हमारी समाप्त हो उसके बाद में हम वमन द्वारा कफ को बाहर अवश्य निकलवा दें, जिससे कि वो कफजन रोग हमें भविष्य में न होने पाए। जी जी, तो ये आपने कुछ अच्छे प्रिकॉशंस बताए जो कि इस समय ध्यान रखने वाले हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम लोग ये जान ही रहे हैं। तो जितना भी अपने को खुद से बचाया जा सके ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी सजेशंस यूथ के लिए दिए, फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके स्क्रीन टाइम के बारे में भी। तो इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा ताकि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से अच्छे बनाए रख सकें। धन्यवाद सर। नाउ इन द नेक्स्ट फेज ऑफ थैंक यू सर। our program, we are moving from youth to now geriatric age group. And for the discussion about the geriatric health challenges and their prevention and health advices for the old age group, I will like to call Dr. Arvind Kumar Gupta sir, who is MD and MD from Patrolla and PhD from NIA, very known person. He is associate professor in Government Ayurvedic College, Bareilly. आज उनके अंडर में पीएचडी स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं और बड़े ही नोन पर्सन रहे हैं, एज ए स्पीकर, एज ए बुक राइटर, एज ए आर्टिकल जिनके जर्नल्स में देखे जाएं तो बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व हैं और अपने बहुत ही मधुर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर को कॉल करना चाहूँगा। डॉक्टर अरविंद सर, आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। ओके ओके ओके, धन्यवाद सर। वेलकम सर। आपका टॉपिक आपको पहले से ही नोन है। नाउ यू हाँ आर हियर जी सर। टू स्पीक अबाउट द जेरियाट्रिक हेल्थ। तो सर, जेरियाट्रिक हेल्थ के वैसे तो बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, उनके साथ में जी सर। ओल्ड जी एज सर। के लिए ये कोल्ड अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में जी आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेंगी, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनका बचाव किया जाए? सर, पहले तो आपको इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां, वैसे तो अगर हम, जैसे कि अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि उनको हम जो चीज़ों को, चाहे वो छोटे बच्चों में है या युवावस्था में है, उनको पालन करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और हमारा बुढ़ापा भी एक हेल्दी बुढ़ापे की तरह आएगा। बुढ़ापे में होने वाली जो मोस्ट ऑफ द बीमारियां होती हैं उसमें बहुत कॉमन है, जैसे हाई बीपी का हो गया, आपके आर्थराइटिस है, ऑस्टियोस्क्लोरोसिस है, और उसके अलावा सेंसरी हियरिंग लॉस, डायबिटीज टाइप 2, इसके अलावा कब्ज है, कोई कई व्यक्तियों में एंजाइटी, डिप्रेशन, और भी जिस प्रकार से इन्फेक्शंस के चांसेस बुढ़ापे में वैसे ही बढ़ते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कि बुढ़ापे में ये सब चैलेंजेस हमारे आज की जो हमारी प्रौढ़ पीढ़ी है उसको देखने को मिलते हैं। हेलो। जी सर। जी हाँ, जी जी। तो ये सारी चीज़ें जो है बुढ़ापे में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ विजन में कैटरेक्ट हो गया, ग्लाकोमा हो गया, ये सब बीमारियां भी हमें हमारे बुजुर्गों में देखने को मिलती हैं। जी सर, और ओल्ड एज में ये भी देखा जा रहा है कि ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनको जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बैक एक हुआ, नी जॉइंट पेन हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में, जी जी संधिवात के सर। रूप में हम जानते हैं, ये भी चीज़ें कई बार हाँ एग्रीवेट होती हैं। कुछ लोगों में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले हैं उनको थोड़ा सा अस्थमा या दमा जैसी प्रॉब्लम है वो भी एग्रीवेट होती हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहता है और बॉडी की जी इम्यूनिटी सर। कंप्लीट पूरे एज ग्रुप के कंपेरेटिवली बाकी अकॉर्डिंग लोगों के, बाकी कम ही अवस्थाओं के है। अनुसार हमारी कम ही जी रहती है। जी, तो इनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? स्पेशली पहले हम लोग फूड सेक्शन पे बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, इन सब में कुछ जी ऐसा इनके लिए स्पेसिफिक जो इनके लिए हेल्पफुल हो। सर,
वैसे तो कोविड के समय से हमारा सबसे एक हल्दी वाला दूध हम लोग पी सकते हैं, और ओल्ड एज के पीपल में भी वो फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो शहद है, और मेवों में द्राक्षा हो गया और अंजीर है, ये दोनों फल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। जी। इसके अलावा आ, जैसा कि आपने बताया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए हेल्थ चेकअप अपना समय समय पर, मतलब 3 महीने पे, हर 3 महीने पे अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। और अपनी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हैं, अगर जारी रख सकते हैं तो उनको जारी रखें। और साथ ही आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर हम बुढ़ापे में सोशल मीडिया से अगर रहते हुए बाकी लोगों से कनेक्ट रह सकते हो तो कनेक्ट रहें, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो सोशली एकदम अलग हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चैलेंजेस आने लगते हैं। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया। जी काफ़ी जी ज़्यादा बुजुर्गों के साथ में ये समस्या है कि फैमिली से डिटैच्ड हैं, बच्चे कहीं अलग सेटल हैं, रह रहे हैं, जी तो ऐसे जी में एक मेंटल स्ट्रेस ये भी एक बड़ा चैलेंज आता है। हाँ तो जी क्या मेडिसिन मेडिसिन सेक्शन से क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कॉमन अपने रूटीन में वो ले सकते हो, और जिससे उनको थोड़ा फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के बेनिफिट्स मिल सकें? हाँ, बहुत सारे जैसे हमारे आयुर्वेद में क्या है कि बहुत सारे रसायन हैं, वो साथ में वो ले सकते हैं। जैसे कॉमनली आजकल यूज होता है च्यवनप्राश है, अच्छी कंपनी का, अच्छी तरह से बनाया हुआ, या कहीं अगर कोई बना रहा हो अपना, तो उसको लें तो बहुत फायदा रहेगा। उसके अलावा अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, और आजकल जाड़ा शुरू हो गया है तो आंवला भी बाजार में आ गया है, तो आंवले को एक चटनी के फॉर्म में च्यवनप्राश ना बना करके भी हम यूज कर सकते हैं उसका। जी। और साथ में हरी मानसिक सब्जियां स्वास्थ्य के और लिए। फल। हाँ, हाँ हाँ। जी सर। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, ये सच भी है, तो जी जी उसमें जी क्या किया जा सकता है औषधियों के माध्यम से? औषधियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मी हो गया, और गिलोय है, और साथ ही साथ हरी सब्जियां, फल, और पानी की बहुत ड्राई स्किन रहती है, तो पानी वगैरह भी ज्यादा मात्रा में पीते रहें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा कि सोशली कनेक्ट रहें, और साथ साथ जो है, अगर उनके जैसे बहुत सारे शौक हमारे होते हैं कि हम अपनी युवावस्था में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई हॉबी है, उसको हॉबी को पूरा करना चाहें कि हमारे पास उस समय उनके पास समय भी होता है, पैसा भी होता है, और जा सके तो तीर्थाटन करें और अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें। उससे भी उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उनको लगेगा नहीं कि हम अकेले हैं। जी, जी। तो एक तरह से मेंटल एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई सिटिंग गेम्स भी अगर पॉसिबल है और उनको अपनी कोई कंपनी मिलता है, तो सिटिंग गेम्स भी एक अच्छे ऑप्शंस हाँ माने जाते बिल्कुल हैं कि जिसके बिल्कुल साथ अपना बिल्कुल टाइम दे सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर उससे पॉजिटिव सीनियर माइंडसेट सिटीजन्स रहेगा हैं। और उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, जी, जी। तो सीनियर सिटीजन्स हैं भारतवर्ष के, जिनकी सलाहें और जिनका अनुभव पूरे देश के लिए बहुमूल्य है। तो इनके लिए क्या कोई स्पेशल सलाह आप और देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि जैसे उनको मानसिक टेंशन ना हो, उसके लिए एक फाइनेंशियली अपने आप को, जैसे युवा अवस्था से हम लोग आजकल हर कोई प्लान करके चलता है, तो प्लानिंग बना के रखना चाहिए, जिससे उनको आगे चल के बुढ़ापे में टेंशन ना हो। और साथ ही अपनी हेल्दी एक्टिविटीज जो भी हैं वो बनाए रखेंगे। और आप सुबह सुबह नाश्ते में, जैसे अभी आजकल के समय में अमरूद आ रहा है, उसको कट करके चने के साथ में, चना कट करके, ये सब चीजें कट करके आप बुढ़ापे में खा सकते हैं। उससे हमारा एक डाइजेस्टिव भी हेल्दी रहेगा। और साथ साथ जो एक बुढ़ापे में एक और प्रॉब्लम हाँ देखी जाती है कि कब्जियत की, वो भी ठीक रहेगी। ये आप रेगुलर द्राक्षा, अंजीर वगैरह मैंने कहा तो जैसे पहले ही, तो ये सब यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। रात को सोते जी, समय जी। हल्दी वाला दूध, ये सब। जी सर। अच्छा, थोड़ा-सा कुछ जैसे ओल्ड एज में थोड़ा-सा स्लीप रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे नींद प्रॉपर नहीं आती या बार-बार नींद खुल जाती है, उतना साउंड स्लीप नहीं रहती है। इसके लिए भी क्या कुछ एडवाइसेज़ हैं कोई जो उनके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल साबित हों, नींद को लेके? नींद को लेकर के आप
अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में ब्राह्मी है हमारी, बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए। ब्राह्मी पाउडर आता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब ये दोनों पर्पस पे काम कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य जी के लिए जो एक स्ट्रेस है, तनाव को भी कम करने में काम कर रहा है और स्लीप को भी इम्प्रूव करने में काम कर रहा है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तो, सर। तो ये बहुत अच्छा सलाह थी सर, और धन्यवाद सर इसके लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें और कोई सलाह हो। नहीं सर, बस इतना लोग तो करें तो, और एक बैलेंस डाइट लेते रहें तो वो स्वस्थ रहेंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर आपका आज के कार्यक्रम में आने के लिए और अपने बहुमूल्य अनुभवों को हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो जेरियाट्रिक एज ग्रुप जो विंटर से रिलेटेड चैलेंजेस हम लोगों ने देखे, इसके बाद हम लोगों का अगला पार्ट है इसी में हेल्थ के चैलेंजेस वुमेन्स के लिए। आधी आबादी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ऑफिस प्लस होम, घर और कैरियर दोनों को संभालते हुए काम करना, लगभग डबल वर्क भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने रहते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज हैं भारत के बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पंचकम डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राजकला मैडम। डॉक्टर राजकला मैडम का करियर बड़ा ही शानदार रहा है। जैसे कि हम लोग बीएएस में अपने नॉर्थ, मिड और साउथ 3 जोन को लेके काम कर रहे हैं, तीनों जोन्स में, वैसे ही मैडम का तीनों जोन का ही अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैडम का यूजी मध्य भारत से रहा, महाराष्ट्र से रहा, एमयूएचएस नासिक से रहा। तो मैडम की एमडी पंचकर्मा में साउथ में त्रिवेंद्रम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से रही, और उसके बाद मैडम ने पीएचडी फिर जामनगर से की। तो तीनों सेक्शन में रहे और करेंटली नॉर्थ इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो मैडम का एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्थ, मिड और साउथ तीनों रीजन से संबंधित है। तो भारत के तीनों जो मेन जोन है उनको मैडम ने करीब से देखा है। हर हर जगह मैडम ने काफ़ी समय बिताया है, तो हर जगह के लोगों की प्रॉब्लम्स को काफ़ी नज़दीक से देखा है। साथ ही साथ मैडम की 4 बुक भी पब्लिश हैं, जिनमें नेफ्रोलॉजी पे मैडम का एक बड़ा अच्छा काम है। इसके अलावा पंचकर्म पे मैडम की बुक है। और इस तक अब तक लगभग सीएमई और कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो लगभग 50 से ज़्यादा सीएमई और कॉन्फ्रेंसेस में मैडम का पार्टिसिपेशन रहा है, जहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन या एज ए इन्वाइटेड स्पीकर की फॉर्म में मैडम का पार्टिसिपेशन रहा है। तमाम रिसेंट इंटरनेशनल जर्नल्स में मैडम के पब्लिकेशंस हैं और पेपर प्रेजेंटेशंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैडम के आज अनुभव का लाभ हम सभी लोगों को मिले। तो डॉक्टर राजकला मैडम, आप अवेलेबल हैं मैडम? Yes. Yes. हेलो मैडम, आपका वॉइस प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजकला मैडम। Hello. यस 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 मैडम, यस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी रिलेटेड टू जनरल हेल्थ ऑफ वुमेन। व्हाट टाइप ऑफ द प्रिकॉशंस वुमेन शुड टेक ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन? अभी के सिचुएशन में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में वुमेन्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकें? एक्चुअली अभी जैसे ठंड का सीजन शुरू हुआ है, और मेनली वुमेन्स का एक होता है कि एक तो उनको सब मैनेज करना होता है। शी हैज टू बी ब्यूटीफुल, शी हैज टू मैनेज द होम, शी हैज टू बी अ प्रोफेशनल। सो या इसमें सबसे ये जरूरी है कि एक तो शी शुड बी फिट। घर बाहर सब संभालना है तो शी शुड बी फिट। तो उसके लिए इसमें कुछ जनरल ये इंडिकेशंस होते हैं। एक तो उसको सर्दी जुकाम ना हो, शी शुड टेक वार्म वाटर। जब भी वो घर में भी हो तो गर्म पानी ही यूज करे। एक दूसरी दिक्कत होती है इस सीजन में, ड्राई स्किन। सो शी शुड टेक केयर कि ठंड और शुष्क हवा का उसके साथ स्किन से कनेक्शन ना हो, या तो शी शुड वियर कवर हर स्किन विद सॉफ्ट क्लॉथ। और अगर हो तो भी रूटीनली, जैसे पंचकर्म की स्पेशलिस्ट हो तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अभ्यंगा। तो फीमेल उतना टाइम निकाल पाए कि अपने मतलब बिफोर बाथ शी शुड टेक द अभ्यंगा। कोई भी तेल, जैसे इस सीजन में कोकोनट नहीं चलता है, तिल का तेल, या तो बहुत ठंडी जगह में है तो सरसों का तेल, दैट कैन बी यूज फॉर द अभ्यंगा। एंड वो अल्टरनेट डे या तो वीकली एटलीस्ट ट्वाइस शी शुड डू इट टू टेक केयर ऑफ द स्किन। दूसरा एक होता है, बहुत बार इस दौरान, इस ठंड के दौरान मेंस्ट्रुएशन में भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है, बिकॉज ठंड बढ़ती है। तो शरीर में गर्म रखने के लिए शी शुड हैव द हॉट ड्रिंक्स। ड्रिंक्स इन द सेंस, जैसे कि जो भी गर्म, दालचीनी है,
काली मिरी है या तो काली मिर्च है, इसका रूटीनली, या तो अदरक है, इसका काली चाय या तो उसका काढ़ा रूटीनली लेते रहे, पपई खाने में रखें, तो उससे वो दिक्कतें कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि मोस्टली बालों की दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है, और तो बालों में ड्राइनेस आता है, तो उसके लिए भी बालों का मतलब अभ्यंग करते रहे। और ओट मोस्टली होते हैं कि उनके लिप्स या तो ओट फट जाते हैं, तो उसके लिए ठंडी हवा से बचे और रूटीनली जो भी सॉफ्टनर है, ऑयल स्किन सॉफ्टनर, या तो जिसको लिक्विड ये बाम मिलते हैं इसके ओठों के, सो दैट कैन बी यूज। आयुर्वेद में ऐसा है कि हम घी ही लगा लेते हैं, तो दैट रूटीनली इट कीप द सॉफ्टनेस। और ड्राई स्किन के या तो स्किन के डिसीजेस बढ़ सकते हैं, तो कोई मेडिकेटेड ऑयल रूटीनली यूज करे, ताकि जैसे कि एक्जिमा हो या तो कभी सोरायसिस हो, ऐसे ना हो, तो भी ऑन द प्रिवेंटिव बेसिस शी मे यूज द एलादी तेलम है, जैसे कि अय्यपाल के तैलम है, नहीं तो सिंपली स्किन अच्छी रखने के लिए नालपामरादी तेल है, ऐसे तेल है रूटीनली शी कैन यूज। और फूड मतलब ये सारी दिक्कतें हैं कि जो जिम्मेदारी या फीमेल्स को करनी होती है, तो उनको एक तो घर में खाना बनाना है, मेहमानों की सेवा करना है, खरीदारी करना है, बच्चों की छुट्टियां शुरू होती है, तो टाइम मैनेजमेंट शी शुड लर्न। और उसके साथ जैसे कि खुद के लिए बीच में कभी वेजिटेबल सूप बना लिया, उसमें थोड़ा घी ले लिया, तो स्किन की केयर और इस जो ठंड की वजह से जो दिक्कतें होती है वो अपने आप कम हो जाएगी। और बाकी one question, one more I would like to ask here. Actually, जब responsibilities are double, तो थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर या मानसिक तनाव जैसी स्थिति कई बार फील होती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां घर और करियर दोनों की काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या कैन बी एडवाइस सम स्पेसिफिक फूड और एनी स्पेसिफिक हर्ब्स विच कैन हेल्प देम? या स्ट्रेस रिलीव होता है, स्ट्रेस रिलीव के लिए सबसे अच्छा तो घर में है जो इट इज अवेलेबल रूटीनली, जो घी होता है इट रिलीव्स द स्ट्रेस। और फीमेल्स को अगर है कि इफ इट इज बहुत मोटापा नहीं है, तो मोस्टली दैट विल रिलीव द स्ट्रेस। दूध में घी डाल के रूटीन लेते रहे तो एक ब्रेन लेवल पे उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। बाकी मेडिसिन के लिए या तो ब्राह्मी है या जटामासी है, ऐसे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द स्ट्रेस। और सबसे अच्छा यह है कि स्ट्रेस कम करने के लिए जस्ट टेक टाइम, डू द प्राणायाम और सम मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes, so that is the better way to prevent the any psychological stress in females. Okay, madam. One more important stage of female life, that is age around the menopause. ऐसे सिचुएशंस में कई तरह के प्रॉब्लम्स इसमें फेस करने को रहते हैं। वो किसी भी सीजन से वैसे तो रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक विंटर नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन में कई बार स्ट्रेस या पल्पिटेशन, फियर, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें कॉमनली फीमेल को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी एज ग्रुप के लिए या ऐसे लोग पर्सनस के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस आपकी तरफ से? हाँ, एक्चुअली इसको शास्त्र में भी या तो मॉडर्न कंसेप्ट में भी पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। बट एक मिडिल एज से ओल्ड एज में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मोस्टली फीमेल्स को जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो फर्स्ट थिंग इज हार्मोनल इम्बैलेंस को कवर करने के लिए या तो उसको मैनेज करने के लिए इट्स बेटर टू अवॉइड द स्ट्रेस। और रूटीन डाइट में जो है वो, मैं फिर से ये कहूंगी, जो अपने डाइट में है जैसे माखन है, घी है, which prevents the hormonal imbalance, that can be taken। और मेडिसिन लेने हैं तो रूटीनली में मेडिसिन से ज्यादा होता है कि वेजिटेबल सूप्स है या तो जैसे दाल का पानी है, तो उससे क्या होगा, मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे। अच्छी से 6 से 8 घंटे की स्लीप, एक्सरसाइज रोज का योग, सो दैट विल प्रिवेंट द पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम। और उसके साथ अगर बहुत एंजाइटी है, सो शी कैन गो फॉर द शिरोधारा, जैसे मोस्टली पंचकर्म में होता है, तो शिरोधारा कैन बी टेकन फॉर द 7 days, सो दैट विल रिड्यूस बहुत तरह के स्ट्रेस
हार्मोनल इम्बैलेंस दैट कैन बी रिड्यूस विद द शिशु। कोई भी आपके आसपास कोई अगर पंचकर्म स्पेशलिस्ट है तो शिरोधारा हम अलग अलग इससे करते हैं, कभी तेल से, कभी बटर मिल्क से, कभी मेडिकेटेड डिकॉक्शन से या तो काढ़े से, कभी दूध से। तो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल इम्बैलेंस और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन और अकॉर्डिंग टू द जो भी डिसीज आते हैं उसके हिसाब से दैट कैन बी एडवाइज टू द पेशेंट्स। ओके मैडम। इसके बाद का एक स्टेज और है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है समटाइम्स, मे बी ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन और हिस्टेक्टोमी और एज, ओल्ड एज। बैकएक बड़ा कॉमन है, बैकएक या जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं फीमेल्स में, और कई बार देखा गया है कि वो इस विंटर में थोड़ा एग्रीवेट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए कुछ एडवाइजेज। या रूटीन ये होता है कि जैसे ओल्ड एज आता है तो जॉइंट पेन और वो ठंड में ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है, तो उसमें है कि ऑयलिंग, ऑयलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेन किलर लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप डाइट में भी थोड़ा सा स्निग्ध चीजें, या तो जिसको बोलते हैं नॉट ऑयली बट जो शास्त्र में कहा गया है कि स्निग्ध चीजें, वो आप ले सकते हैं। और जैसे जॉइंट पेन ना बढ़े इसलिए जैसे मैंने कहा कि बिफोर बाथ शी शुड टेक द Abhyanga or the whole body massage with the medicated oil that should be continuous। specifically जहाँ joints है वहां पर कोई medicated oil या तो घर में जो तेल है सरसों का या तो तिल का तेल है उसमें अजवाइन और ये डाल, अजवाइन ऐसी चीजें डाल के उसको मेडिकेट करके घर में भी वो अभ्यंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जा सकता है एंड दैट विल प्रिवेंट द जॉइंट पेन्स। ओके मैडम। वन मोर क्वेश्चन। एक्चुअली लास्ट गेस्ट स्पीकर से हमने जेरियाट्रिक एज ग्रुप पर वैसे तो बात की है, बट फीमेल सेक्शन में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और एज ग्रुप में एडवांस अगर हम चलें तो जैसे स्लीप प्रॉब्लम या एंजाइटी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें जो ओल्ड एज रिलेटेड हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कुछ अलग से सपोर्ट फूड या वेजिटेबल या कोई हर्ब्स, इनसे कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई फीमेल बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ अलग से सलाह दी जा सकती है, जैसे या उन्होंने। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है जैसे एज बढ़ती जाती है तो नींद कम हो जाती है फीमेल्स में, वो ज्यादा पता चलता है। या तो शी एंड्स अप इन द एंजाइटी। जैसे मेल होते हैं तो किसी में अपने मन को लगा लेते हैं, बट फीमेल को होती कि सारी जिंदगी वो फैमिली को संभालते रहते हैं, शी डोंट नो हाउ टू मैनेज हरसेल्फ। मोस्टली इट्स नॉट ऑलवेज बट ये दिक्कतें होती है। तो और नींद नहीं आती है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो उसमें आयुर्वेद में पादाभ्यंग बताया गया है, जैसे कि तलवे, पैर के तलवे को कासे के, कोई भी बर्तन हो कासे का, उस पे घी लगाते के उससे मालिश करते हैं। तो ये काफी इंसोम्निया के पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। अगर कासे का बर्तन नहीं है, कटोरी नहीं है, घी नहीं है, सिंपल कोकोनट या तिल तेल भी लगाए और उसका अभ्यंग करे, और सिर पे जैसे यहाँ पीछू होता है वो सिंपल दिन में कभी रख दे 30 मिनट्स के लिए, मतलब ऑयल सोप्ड कॉटन जो रखा जाता है आयुर्वेद में बताया गया है, इसको शिरो पीछू कहते हैं। दैट विल रिलीव द इंसोमिया, एज रिलेटेड इंसोमिया। और वो काफी हद तक पेशेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और डाइट में ऐसी चीजें हैं जो नींद बढ़ाती है, तो ये कहा गया है कि जैसे भैंस का दूध है, अगर नींद नहीं आती तो बहुत नींद बढ़ाती है। तो दैट कैन बी टेकन इफ इट इज इंसोमिया बिकॉज ऑफ वात बढ़ने से ही है तो। बट स्ट्रेस इंड्यूस्ड है इंसोमिया तो ब्राह्मी बटी अवेलेबल होती है, मानस मित्र वटकम अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है, सो दैट कैन बी टेकन। और अश्वगंधा, सिंपल अश्वगंधा विथ मिल्क। अगर कोई पित्त प्रकृति है या तो जिनको बहुत एसिडिटी होती है, दे कैन हैव द यष्टि मधु विथ मिल्क फॉर द बेटर स्लीप। ओके मैडम। यही दिस इज द एक्चुअली ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। Problem of stress we have discussed and different age group, and our experts have given the very specific advices for example, for the ladies, madam has advised padabhyang, a very good thing. uh, but in last session we had seen Dr. Arvind has advised brahmi, good for the sleep also, good for the stress also. Dr. Akhilesh, for stress they had advised, he has advised for the Jyotismati, that is good for the eyes also, good for the brain also.
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं कि जो हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं स्पेसिफिक एज ग्रुप में और एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, तो एक ही जैसी समस्याओं के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन काम आती हैं। इसीलिए कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर में जाने से पहले, जैसे मैडम ने कई बार एडवाइस भी किया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इवन सिरोधारा के लिए भी जा रहे हैं, तो ये स्पा सेंटर पे सेलेक्ट ना करके किसी एक स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट करिए, क्योंकि वो आपके लिए जो सूटेबल सही मेडिसिन है, जो पंचकर्म का स्पेशलिस्ट है, वो आपको एक सही मेडिसिन सही ड्यूरेशन के साथ में प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मैडम, आपसे ही रिलेटेड, ये थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आप कंट्री के तीनों पार्ट्स में रही हैं, नॉर्थ, मिड और साउथ में। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ आपको कहाँ की फील होती है? चैलेंजिंग किस फेज में, किस वे में? आई एंजॉय थोड़ा सा, हाँ, यस, वर्क कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा। this all parts of India is have its own culture and diversity. So of course I enjoy working in Kerala. मतलब जब मैं ओके। वहाँ पीजी कर रही थी तो वहाँ सारा सिस्टम में चलता है. They have the typical pattern of working and I enjoy that also. Food भी बहुत अच्छा I enjoy. जब when I was in Gujarat, it has its own way of like जैसे मीठे, मतलब कोई भी सब्जी में मीठापन आ जाता है, वैसे उनके सारी चीजों में मीठापन आ जाता है. सो आई एंजॉय दैट देयर. और बनारस में है, बनारस का अपना एक ब्लेस ब्लेस प्लेस है. सो रियली इट्स वेरी नाइस टू बी हियर. सो मैं तो तीनों पार्ट में आई एम द सेम लाइक यस। एंजॉय. मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई एंड चैलेंजिंग तो नहीं है. आई नेवर फील लाइक आयुर्वेद में चैलेंजिंग बस एक ही होता है, यू हैव टू प्रूव टू द जनरल पब्लिक. अदरवाइज इट्स वेरी गुड इन अपने प्रोफेशन में तो सब अच्छा ही है. Yes, madam. Yes. So, last, any specific advices to the women, especially related to the season or some other point of view? Women's या के लिए कोई स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे आप? वुमेन्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर हेल्थ. एटलीस्ट इन दिस विंटर दे शुड टेक द गरम गरम खाना खाए, अपना वेजिटेबल सूप रोज बनाए, स्पेसिफिक वेजिटेबल सूप दोनों टाइम ले, और दूध ले, और घी भरपूर ले घर में बनाया हुआ, और टाइमली खाए, और मस्त खुद को सुंदर रखने के लिए कुमकुमादि तैलम है या तो कोई मस्त ये तेल अभ्यंग के लिए यूज करे. एंड शी शुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. योगा करे, वॉकिंग करे, हल्की एक्सरसाइज चालू रखे. सो शी शुड बी हेल्दी फॉर दिस हेल्थ सीजन. ओके. ओके, थैंक यू मैडम। आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लगभग फीमेल एज ग्रुप के हर एक फेज को टच करते हुए, फीमेल एज ग्रुप का, यंग एज ग्रुप, मेनोपॉजल एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, उनके स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें, उनके कैरियर और फैमिली से रिलेटेड चैलेंजेस को कैसे बैलेंस रखते हुए अपने हेल्थ को अच्छे से अच्छे बनाए रखा जाए और किस तरह से एंजॉय करते हुए लाइफ जी जाए, इस पर आपने बहुत अच्छा अपना पक्ष रखा। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आगे के फिर किसी वेबिनार में हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि आपके एक्सपर्टाइज का हमको और हमारे पार्टिसिपेंट सभी को बेनिफिट मिलता रह सके। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर प्रोग्राम, दैट इज, हमने सभी सेक्शन में चिल्ड्रंस के लिए, यूथ के लिए, ओल्ड एज पर्सन में, वुमेन्स के लिए ये देखा खाने पीने से रिलेटेड किस तरह के बदलाव करके किस तरह के कुछ मेडिसिन या कुछ प्रोसीजर्स जिनको अडॉप्ट करके एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में अपने हेल्थ को हम लोग अच्छा बनाए रख सकते हैं। इसी सेक्शन में एक पॉइंट आता है कि क्या पर्टिकुलरली कुछ ऐसे एक्सरसाइज या योगा भी हम ऐड कर सकते हैं जो हमारे विंटर के लिए थोड़ा हमको एडिशनल बेनिफिट दें। तो इसके लिए हमारे पास एज ए गेस्ट अवेलेबल हैं डॉक्टर गरिमा मैडम। डॉक्टर गरिमा, she is MD from NIA and PhD from AIA, and continue at present she is working in All India Institute of Ayurveda in Department of Swasthat and Yoga. So she is the, but due to some technical problem, we are unable to connect with her. So for solving this problem, she has sent her video for the same question, means what are the challenges of winter for the different age groups, and which type of the yoga we can select for the children's or for the youth person or for the geriatric age group. One thing very common which is used, we will upload her video very soon with this webinar.
One thing I will like to discuss here, that is Sukshma Vyayam या Sandhi Chalan, which is known in yoga exercises. Before starting any yoga or asan, we should start with Sukshma Vyayam or Sandhi Chalan. Dr. Swapnil is available here. Dr. Swapnil. Yes, sir. Hello. यस सर, एक जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है, योगा से चूंकि रिलेटेड आया है, एक क्वेश्चन भेजा गया है हमें कि सभी प्रकार की योगा या एक्सरसाइज करने से पहले योगा के एक्सपर्ट थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम या संधि चालन जैसी अवस्थाएं बताते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपका 2 शब्द में लेना चाहूंगा। सर थैंक यू सर। सबसे पहले कोई भी योग या व्यायाम करने से पहले हमें अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप, जैसे कि हम जानते भी हैं, अगर हम मान लीजिए हम जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो उसके पहले भी कोई आप हैवी वेटेड लिफ्टिंग या कुछ करने से पहले आपका ट्रेनर आपको सलाह देता है कि आप बॉडी थोड़ी लूज कर लो। बॉडी लूज करने के लिए वो आपको थोड़ी देर कार्डियो कराएगा या कुछ स्ट्रेचिंग बताएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको कोई इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेम इन द केस ऑफ आसन और व्यायाम भी सेम वही है कि आपको सडनली आप किसी आसन में जाओगे तो हो सकता है आपकी बॉडी पूरी तरह से लूज ना हो, तो उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए यू हैव टू डू सम लूजनिंग एक्सरसाइज, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम या संधि चालन कहते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का एक आपका सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे कि वी स्टार्ट फ्रॉम हेड, नेक रोटेशन है, नेक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम हेड और नेक से नीचे शोल्डर पे आते हैं तो शोल्डर रोटेशन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। देन हम आते हैं, अब रिस्ट पे आते हैं, तो रिस्ट अपना हाथ सामने रख के यू कैन डू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, रिस्ट रोटेशन हो गया। फिंगर्स मूव करानी है, और ऐसे ही आपका हिप रीजन, आपका थाइस, उसको मूव कराना है, एंकल्स हो गए, काफ हो गया। तो इस तरीके से हम हर एक बॉडी पार्ट को कवर करते हुए लूजनिंग एक्सरसाइज थोड़ा वार्म अप की तरह हम करवाते हैं बिफोर डूइंग प्रॉपर योगा। ओके सर, ओके सर। वैसे जनरली आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया है, समझ में भी आ रहा है, बट होपफुली वी विल फॉर वन वीडियो आपका, अगर इससे रिलेटेड कोई एक वीडियो आप अवेलेबल कराएं तो हम लोग उसको अपलोड करेंगे और वो सभी को समझने में ज़्यादा आसानी देगा। तो डॉक्टर गरिमा मैडम का वीडियो हेल्दी विंटर से रिलेटेड और थोड़ा सा ये जो सर ने बताया सूक्ष्म व्यायाम से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, उसको आप सब्सक्राइब करके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक एक्सपर्ट्स के साथ में था, और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम बीएस को भारत आरोग्य संगठन के माध्यम से किस दिशा में जा रहे हैं। जो भी लक्ष्य हमने बनाए थे, जैसे यूपीएससी को आयुर्वेद का एक पार्ट सब्जेक्ट के रूप में बनाना या आयुष्मान भारत में आयुर्वेद को भी इंक्लूड करना, इन सभी में प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। आयुष चिकित्सकों के कुछ लीगल राइट्स और तमाम ऐसी ही चीज़ों को लेकर ये संगठन जो बनाया गया था, इसको लेकर हम चल रहे हैं, और ये डॉक्टर अरुण खैरे सर के नेतृत्व में चल रहा है। सर बहुत ही प्रयास कर रहे हैं अपने पूरे जोर शोर के साथ, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के बीच में जहाँ भी संभव हो सकता है वो संगठन से रिलेटेड कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ें आयुर्वेद के आयुष के लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं उनको लेकर मिनिस्ट्री से लगातार संपर्क में है। तो डॉक्टर अरुण खैरे सर, क्या इस समय आप अवेलेबल हैं? यस सर। हेलो सर। हाँ नमस्कार सर। हम चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा प्रबोधन हम लोगों को सुनने को मिले। इस समय हम क्या चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और आगे हम लोग भारत आरोग्य संगठन के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसके विषय में संक्षिप्त सी जानकारी आपकी मिल जाए। जी सर। नमस्ते आप सभी को, और स्पेशल थैंक्स राजकला मैडम, अरविंद सर, अखिलेश सर, केतन सर। अभी जो हमारी पीछे मीटिंग हुई थी आयुष मिनिस्टर के साथ में, तो सर ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था। जब हमने उन पर हमारा लिटरेचर दिया और बताया कि हमारे ऐसे ऐसे मांगे है, तो सर ने पूछा कि आपका संगठन महाराष्ट्र में काम करता है कि नेशनल लेवल पे काम करता है। तब जब उन्होंने हमारा ये देखा, हमने हमारा पेपर देखा, तब उसके ऊपर जो लोगों के नाम लिखे थे कि केरल से लेके जम्मू तक
इधर मेघालय से लेके गुजरात तक। तो जो लोगों के नाम थे तो वो हिसाब से सर को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सर को बहुत ही खुशी भी हुई कि ये संगठन अपना पूरे भारत में काम कर रहा है। अभी जो आज का थोड़े दिन पहले ही आयुष्मान भारत में हमें इंक्लूड नहीं किया गया था अभी। तो सर से कल शाम में हमारी बात हुई थी इस बारे में। तो सर ने हमें आज सवेरे का टाइम भी दिया था, मगर कुछ उनके प्राइवेट कार्यक्रम के वजह से आज हमारी बात नहीं हुई। मगर अगले 2-1 दिन में हमारी बात उनसे इसी बात पे होने वाली है कि आयुष्मान भारत में हमारे जो बीएमएस के लोगों का, जो कि समझो जॉइंट पेन के लोग हैं या शिरोधारा वगैरह जब हम पंचकर्म करते हैं, उसको आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया जाए, जिससे कि गरीब से गरीब लोगों तक हमारी चिकित्सा पहुंच सके और हमारे जो डॉक्टर्स है आयुर्वेद के, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी से एक अनुरोध है कि सर ने जब हमारा लिफलेट देखा तो उसमें जब जो नाम थे तो उस हिसाब से उनका कहना था कि उन्होंने अच्छी बात ये लगी कि उनके नंबर्स बढ़ रही है। तो आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे नंबर्स बढ़िए। हमारे जो भारत आरोग्य संगठन की जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, जिस कारण से एक प्रेशर बन सकता है सर के ऊपर भी। और माननीय प्रताप जाधव सर ने, हेलो, सम्माननीय आयुष मिनिस्टर अपने प्रताप जाधव सर ने हमें इसके लिए भी हाँ ही बोला है कि यूपीएससी में हमारा सिलेबस, और दूसरी बात आयुष्मान भारत में हमारे बीएमएस लोगों को इंक्लूड कर, बीएमएस हमारे जो आयुर्वेद के व्याधियों को इंक्लूड करना। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली है कि रेलवे में जो हमारी जगह नहीं थी अभी, बीएमएस लोगों को इंक्लूड नहीं करते थे, उस बारे में हमने बात की तो सर वो उसके लिए भी पॉजिटिव है। हो सकता है अगले 6 महीने या साल भर में आपको ये भी न्यूज़ मिल जाएंगी कि रेलवे में जो डॉक्टर्स है, बीएमएस डॉक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि फायदा ये होगा कि अपने बीएमएस के जो अपने जो लोग हैं बीएमएस के, उन्हें ये फायदा होगा कि जॉब सिक्योरिटी आ जाएंगी, जॉब बढ़ेंगे। जैसे कि सैचुरेशन बढ़ रहा है, जैसे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं बीएमएस के, वैसे हमें भी जॉब के अवसर ज़्यादा प्रदान होंगे। बस आप लोगों से ये अनुरोध है, आप सभी लोगों से, कि हमारे मेंबर्स बढ़ाइए, जिस कारण से कि हम और कुछ इसमें हमारे संगठन के माध्यम से बीएमएस के लोगों के लिए, अपने आयुर्वेद जगत के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपका अपने संक्षिप्त रूप में ही लगभग संगठन के अभी के समय में चल रहे जो कार्य हैं और आगे के लेके हमारी जो योजना है उनके विषय में प्रकाश डाला। धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए। अब कार्यक्रम के अंत में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस कार्यक्रम में हैं, वो यद्यपि मैंने चैट के माध्यम से भी ये मैसेज सबको सेंड किया है, जो लोग भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट्स के रूप में जुड़े हुए हैं वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम कुछ समय तक मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर कुमार सर से अनुरोध करूंगा, जो भारत आरोग्य संगठन तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से प्रेसिडेंट का कार्यभार देख रहे हैं और शाला के एक्सपर्ट हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आज के कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स का कार्यक्रम प्रेजेंट करें। डॉक्टर कुमार सर, आर यू अवेलेबल? Yes, sir. Namaste to all. I am audible, sir. Yeah. With the blessings of unseen forces, Daiva Dhanvantri and Ayurved Maharshis, I am extremely delighted for getting opportunity of both of thanks. First of all, thanks to Dr. Anuradha Madam for Dhanvantri Stavan, and I am very much thankful to National President of our BAS, Dr. Arun Khaire sir, Vice President Dr. Ajay Singh sir, and Secretary Dr. Vijay Gupta sir for great vision on Ayurveda, and all state presidents and team for cooperation in managing webinar. And special thanks to our organizing secretary, Dr. S.P. Chauhan sir, for better anchoring throughout the session. And a special thanks to our today's expert speakers, associate professors for enlightening excellent knowledge on topics like Dr. Ketan Dangat sir, Healthy Winter on Children, Dr. Akhilesh Kumar sir, Healthy Winter on Youth, Dr. Arvind Gupta sir, Healthy Winter on Geriatric, Dr. Rajkala Patil madam, Healthy Winter on Women, Dr. Garima madam is will be uploaded on our YouTube madam for providing that video also. Thanks to you madam. And not last but the least, our enthusiastic students and all participants joined webinar across the nation, and technical team and Zoom for providing platform of interaction. And thank you one and all, and download your certificates, and BAS will get back to you all soon with new topics. Thank you all. Thank you sir. Thank you very much for your energetic speech.
Now for all the participants who want to download the certificate of this webinar, they can download. For the next 5 to 10 minutes, approx 10 minutes, meeting will be continue, and then after this meeting will be closed. तो बहुत ही अच्छी तरीके से आज का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, सभी लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया। फर्स्ट स्पीकर से लेके सभी स्पीकर्स ने हमको डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड